Okay. So first of all, very good morning to all of you. In the last lecture, Good we morning, learned sir. yes. In the last lecture, we were learning the scale of codes, and after this, we were just started the engineering course, right? So we were talking about the engineering course and different types of engineering curves. That types are conic, cycloidal curve, involute, and spiral. So let's continue from the beginning of engineering curves. So first of all, classification of curves. You can start right with me, so you can take notes. Classification of engineering curves. Right. So there are total four classifications: a conic, in this conic curve we have different five types of shapes, like first triangle, second is circle, third is ellipse, fourth one is parabola, and the fifth one is hyperbola. Right? Now the second type is cycloidal curves. In that case, there are three subdivisions. First is cycloid, second one is epicycloid, and third one is hypocycloid. Right? Now moving forward, the type C, involute. In the involute, there are total four subtypes: one, two, three, and four. First one is involute of line. Second one is involute
of circle. Third one is involute of square, and fourth one is involute of polygon. Right? What is the difference between square and a polygon? Anyone can tell me? Just a second. Okay, let's continue. Can anyone tell me what is the difference between square and a polygon? Anyone? Anything? जो भी आपको पता है, you can tell. No one. So, polygon means x number of edges, right? In that case, we can include triangle, square, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, right? Square and a triangle are the one type of polygon, right? Okay, you will also know this when we will continue our drawing with universal method of polygons, right? We will see this topic after this topic. So first of all, let's complete this topic. The fourth type is spiral. In that there are two subdivisions. First one is Archimedean spiral. Archimedean spiral, and the second one is logarithmic spiral. Okay, just write all the types of engineering curves and the subtypes of engineering curves. Now, if I talking about the conical curves, these 5 conical curves, then what are the use of conical curves and how conical curves are made, that I have showed in the last lecture, that if I am taking one circular cone, like this, then cutting this cone by cutting planes with different position of the plane, it gives us different conical curves, right? For example, if I cut this cone with exactly from the vertical half, then what I will get? I will get the triangular शेप. जो ये कटिंग प्लेन जो है
वो हमें क्या दिखाएगा, ट्रायंगुलर शेप, राइट। नाउ इफ आई एम कटिंग दिस कोन फ्रॉम एग्जैक्टली horizontal type, right, then I will get the circle. ये जो बाकी यहाँ से कट होके जो स्पेस एरिया बचेगा वो एरिया क्या होगा, वो सर्कुलर एरिया होगा। यहाँ पे जो कट होने के बाद जो स्पेस बचेगी, जो एरिया रहेगा, वो एरिया ट्रायंगुलर एरिया रहेगा, राइट। एंड in the last lecture I also showed that how we can get parabola, hyperbola and ellipse from the cutting a circular cone, right. For the ellipse we have to cut the cone like this, right, inclined to the axis of the cone. एक इंक्लिनेशन में अगर हम कट करते हैं तो जो एरिया हमें मिलेगा वो एरिया इलिप्स रहेगा, right. So this one will be the first, this one will be the second, this one is the third one. Now for parabola and hyperbola, if I am cutting any this cone, for example, let me show here, I am cutting this cone, this one is the center line of this cone. I am cutting this cone like this. This one will be the fourth one. Then what way I will get the shape of a parabola, right. And the last one, if I cut the cone like this, देखो ये नंबर 5 एंड नंबर 4 में क्या डिफरेंस है। नंबर 4 में जो कटिंग प्लेन है इंक्लाइंड है, बट वो एक्सिस को कट करते हुए जा रही है। जो जनरेटर है, ये जनरेटर जो है उसको दो सेक्शन में अलग अलग कट करते हुए वो कटिंग प्लेन आ रहा है। देन द कर्व इज पैराबोला, एंड इफ the cutting plane is does not cut the generator or the axis, उसको एक्सिस या जनरेटर के पैरेलली वो कट होगा, then the curve we obtain is the hyperbola curve, right. So this same exercise I have shown in the last lecture and now also. So I hope all of you were done the writing. सबने क्लासिफिकेशन लिख लिए? Yes, sir. Okay. So now I have also wanted to share one information that what is the use of ellipse, parabola and hyperbola, right. पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। So if you want to write a note then you can, देखो इलिप्स का यूज क्या रहेगा, to decide a shape of tank of a tanker. If you see the tanker shape of tanker, it's little bit like a ellipse, right. टैंकर का जो शेप रहता है उसको डिसाइड करने के लिए इलिप्स का यूज होता है। देन द पाथ शोइंग ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो सन के अराउंड हमारी अर्थ की मूवमेंट है, राइट। आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड इर्द गिर्द किस तरीके से चक्कर काटती है, राइट। जो चक्कर काटने का उसका पाथ है वो पाथ इलिप्टिकल शेप है, राइट। तो इलिप्स की हेल्प से उस मूवमेंट को हम शोकेस कर सकते हैं एंड कोई भी आर्क को क्रिएट करने के लिए पैराबोला का इलिप्स का यूज होता है, राइट। नाउ second one is parabola. What is the use of parabola? To हमारे जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है
उसके लैंप रिफ्लेक्टर जो है, फ्लड लाइट जो हेड लैम्प बोलते हैं, हेडलाइट इन ऑफ एनी व्हीकल, इट हैव्स द लैम्प रिफ्लेक्टर बिहाइंड द लैम्प, सो आवर लाइट कैन बी स्प्रेड widely and on the roads, right? So to make that lamp reflector, parabola is very useful, right? And in sound reflector of music system, उसमें भी पैराबोला का बहुत ही बड़ा हाथ है. एंड देन cooling towers of power plant. If you see any power plants, then in the power plants there are one cooling towers जो बहुत ही हॉट वाटर होता है, उसमें यूज होता है पावर प्लांट्स में. उसको कूल डाउन करने के लिए कूलिंग टावर्स का यूज किया जाता है. सो वो कूलिंग टावर्स के शेप को डिसाइड करने के लिए पैराबोला का यूज होता है, राइट? एंड द लास्ट वन इज द हाइपरबोला. हाइपरबोला का यूज जो है इज दैट टू अंडरस्टैंड अ नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ. अगर आपको कहीं पे आया होगा, बॉयल्स इज वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट इन आवर साइंस. तो उसके जो उसने ग्राफ दिया है, उस ग्राफ के नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम हाइपरबोला का यूज करते हैं. एंड देन एनी वाटर चैनल्स की डिजाइन करनी है, then it will be a very useful to design a water channels and to decide a shape of overhead water storage tank. जो overhead water storage हम टैंक बनाते हैं, उसमें भी हाइपरबोला का यूज हम करते हैं, right? So these are the practical applications of this curves, or like ellipse, parabola and hyperbola. ट्राइंगल एंड सर्कल की अगर बात करें तो आपको पता ही है, फॉर any of a circular object we were using the circle and triangular shapes, right? Now सर हाँ बोलिए हेलो बोलिए. सर। हाँ बोलिए. हाँ, हम अब यहाँ पे कटिंग करेंगे जो एलिप्स पैराबोला और हाइपरबोला में। Yes, yes. उसमें नीचे का भाग जो बचेगा वो होगा ना कि ऊपर का भाग? Yes, very good question. I have also mentioned. देखो, for example, if I cutting for the point number 1, then this will be the part is removed. ये पार्ट अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद जो पार्ट बचता है, अगर उसको मैं ऑब्जर्व करूंगा तो वो शेप जो है वो मेरा ट्राइंगल रहेगा, राइट? फॉर द नंबर 2 सर्कल, इफ ये टॉप वन पार्ट जो है उसको अगर मैं रिमूव कर दूंगा कॉन में से, देन जो सरफेस आएगी कटिंग सरफेस, वो कटिंग सरफेस सर्कल रहेगी. एंड फॉर द इलिप्स, ये टॉप पार्ट जो है अगर उसको मैं रिमूव कर देता हूं, देन जो कटिंग सरफेस है वो सरफेस मुझे इलिप्स देगी, राइट? सो ऑलवेज ये अपर पार्ट है वो कट होंगे. अगर बात करूं यहाँ पे पैराबोला एंड हाइपरबोला की, देन फॉर द पैराबोला ऑल्सो द सेम, दिस पार्ट विल बी द कटिंग पार्ट and will be removed from the cone, right? And for the hyperbola, this part, this side of shape will be removed, right? And then we will get the our original shape of our curves. So अब इसमें कुछ डाउट है? नहीं सर, हो गया। ओके. सो आई होप आप लोग सब लोगों ने ये जो है क्लासिफिकेशन वो अच्छे से लिख लिया है और समझ लिया है, राइट? सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था वी विल अंडरस्टैंड द एसेंट्रिसिटी, राइट? So let's just say eccentricity spelling will be
E C C E N T R I C I T Y, eccentricity. Right? So, to understand eccentricity, let me just draw some drawings and then I'll show you what is eccentricity. Right? So first of all, I am taking one vertical line and one horizontal line. So for the ellipse, parabola and hyperbola, we are having few terms. First term is the directories, right? So this vertical line is known as a डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कॉनिक्स, राइट? ये जो टर्मिनोलॉजीज है वो आपको याद रखनी है. वर्टिकल वन इज द डायरेक्ट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल वन विल बी द एक्सिस. Right? Then also a focus of any curve will be in the picture, and the vertex of the curve will be in the picture, right? Vertex, directories, focus and axis. वर्टेक्स एंड जो फोकस है वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होगा, बट फर्स्ट उससे पहले मैं एक यहाँ पे कर्व बना लेता हूँ. अब कर्व जो है हमारे इलिप्स, हाइपरबोला या पैराबोला, तो मैं अभी यहाँ पे रैंडम एक बना रहा हूँ इलिप्स. I don't know this size of this ellipse and its characteristics. I am also making one parabola like this and also making one hyperbola, right? So let me say this one will be the hyperbola, this will be the parabola, and this is the ellipse, right? So what is the eccentricity? अब उसको समझने के लिए पहले एक काम करते हैं, मैं वापस से थोड़े और टर्मिनोलॉजीज जो है वो लिख देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द इलिप्स there will be a two axis, one is major axis and one will be the minor axis, right? जो इलिप्स की बड़ी एक्सिस होगी उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं एंड छोटी है तो माइनर एक्सिस बोलते हैं. इफ इलिप्स इज वर्टिकली स्टैंडिंग देन द मेजर एक्सिस विल बी द वर्टिकल एक्सिस एंड माइनर एक्सिस विल बी द हॉरिजॉन्टल वन, बट वो उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा, राइट? सो फॉर द इलिप्स, अगर मैं इलिप्स की बात करता हूँ, देन इन द इलिप्स देयर आर टू फोकस, राइट? ये जो कर्व बनते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स रहते हैं. ये सेंटर से यहाँ तक और यहाँ तक ऐसे सेम शेप में रहेगा और यहाँ से कर्व का शेप चेंज होगा.
ये जो कर्व का शेप होगा उसका सेंटर एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, राइट। अगर मैं उसको बोलता हूँ ये सेंटर है, उसको हम फोकस बोलते हैं, एफ एंड एफ डैश। तो इलिप्स को जनरेट करने के लिए दो फोकस की जरूरत पड़ती है, राइट। फर्स्ट वन फोकस जो है एफ, वो ये इस कर्व को जनरेट करता है, इस वाले को, एंड सेकंड फोकस जो है उसको सेंटर रख के हम ये कर्व जनरेट करते हैं, एंड देन जो हमारे इलिप्स का सेंटर है उसका यूज करके हम ये भी कर्व जो है उसको जनरेट करके इलिप्स को कंप्लीट करते हैं, राइट। नाउ अब फोकस आपको समझ में आ गया क्या है, कर्व का सेंटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ ये जो पूरा पैराबोला है उसका भी फोकस यहाँ पे भी, यहाँ पे ही होगा। पैराबोला कर्व मेरा अच्छा से बना नहीं है, अगर वो अच्छे से बनेगा तो उसका फोकस भी ये रहेगा, उसका जो सेंट्रल कर्व है इस फोकस के थ्रू होते हुए जाएगा, एंड हाइपरबोला का भी फोकस यहाँ पे ही रहेगा, राइट। मीन्स सब कर्व का एक फोकस होता है, एंड there will be a one focus and one vertex of all the curves। अब ये फोकस जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F इज इक्वल टू फोकस, FOCUS, right। now what will be the vertex? now this axis जो एंड पॉइंट है कर्व के, वहां पे जहाँ पे टच होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस विल बी द वर्टेक्स ऑफ hyperbola, this is the vertex of parabola, and these two are the vertex of ellipse, right। V is equal to vertex, 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 राइट। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एसेंट्रिसिटी। अब मैं यहाँ पे दो लाइंस ले रहा हूं, स्ट्रेट लाइंस, राइट। डायरेक्ट्रीज टू फोकस, यहां से ये फोकस की लाइन ले रहा हूं कहीं से भी, अगर ये डायरेक्ट्रीज को अगर मैं O बोलता हूं, एंड यहाँ पे जहां पे भी कोई पॉइंट कट करेगा उसको मैं अगर पॉइंट P बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक लाइन ले रहा हूँ हाइपरबोला के लिए, दिस विल बी माय OP line, and then P to direct focus, right, OP and PF. So for the hyperbola, this PF divided by OP is always less than 1। अब जो ये डिफरेंस है फोकस टू पॉइंट एंड पॉइंट टू डायरेक्ट्रीज, फोकस टू पॉइंट डिवाइड बाय पॉइंट टू डायरेक्ट्रीज, ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बोला जाता है एसेंट्रिसिटी। व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? एसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट, ये जो P है वो मूविंग पॉइंट फ्रॉम द फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रीज, राइट। यहाँ पे मैं पूरा जो है मतलब पेन से लिख देता हूँ। व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? द रेशियो of the distance of the moving point
from the focus and the distance of the moving point from directories is called the eccentricity. ये जो लाइन OP है, ये जो मूविंग पॉइंट है, राइट, ये मूविंग पॉइंट P है। कोई भी कर्व को अगर हम यहाँ से कहीं से भी पॉइंट लेंगे वो मूविंग पॉइंट P बोला जाता है। ये पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस डिवाइड बाय पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रीज, अगर उसको रेशियो हम निकालेंगे देन ऑलवेज इट विल बी द ऑलवेज ग्रेटर देन 1, राइट। अगर ग्रेटर देन 1 है तो कर्व जो है वो हाइपरबोला है। नाउ फॉर द पैराबोला, if I taking the distance from here, this point will be the this point will be the point P for the parabola, right। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ऑलवेज एक्सिस से पैरेलल ले ली है, OP लाइन, राइट, एंड देन उसको फोकस के साथ मैच करवाना है। देन PF divided by PO, it will be the equal to 1, always equal to 1। जब पैराबोला की बात करते हैं then the eccentricity will always be equal to 1, right। Now the third one, ellipse. So I am drawing the distance from here, parallel line, the vertex giving name O and point P and P to F, right। So for the ellipse, PF divided by PO, it will be the always less than 1। ये जो डिस्टेंस है ऑलवेज अगर डिवाइड करेंगे हम इस डिस्टेंस को तो वो लेस देन 1 रहेगा। सो फॉर इलिप्स एसेंट्रिसिटी विल बी द लेस देन 1, फॉर द पैराबोला एसेंट्रिसिटी विल बी द इक्वल टू 1, एंड फॉर द हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी विल बी द ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यहां तक सबको समझ में आ गया? Everyone understood? Yes, sir. Okay, so you can draw this for your reference in your sketchbooks. हाँ बोलिए बोलिए, किसी को डाउट है कुछ? कर्व्स में हमेशा 3 या 4 चीजें जो है वो आपको याद रखनी है, द डायरेक्ट्रीज, वर्टेक्स, फोकस एंड एक्सिस, राइट। ये 4 कॉमन चीजें रहेगी, सारे कर्व, हाइपरबोला, पैराबोला या इलिप्स कोई भी होगा उसमें ये चारों चीज आएगी।
फोकस जो सेंटर में रखे उस कर्व को बनाया गया है, एक्सिस जिस एक्सिस पे ये कर्व बना है, डायरेक्ट्रीज एंड एक्सिस की हेल्प से ही कोई कर्व बनता है, उसकी हेल्प के बिना कोई कर्व नहीं बनता, राइट। एंड द वर्टेक्स जहाँ पे कर्व जो है वो एक्सिस को कट करता है, वो पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। If you want to write the definition of these directories, focus, vertex and axis, then you can write, I am telling, for the directories, the definition is will be the fixed point is called focus and the fixed line is called directories, right? ये जो फिक्स्ड पॉइंट रहेगा जिसके इर्द गिर्द कर्व बना है वो फोकस रहेगा, और एक फिक्स्ड लाइन है जिससे जिसको यूज करके हमने कर्व को बनाया है वो डायरेक्ट्रीज बोला जाएगा, राइट। एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। देन फॉर द एक्सिस the line passing through the focus of the conic and perpendicular to the directrix of the conic is called the axis of any conic। अगर कोई conic कर्व है उसको उसके थ्रू पास होते हुए फोकस को कट करते हुए अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं एंड एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रीज ये अगर लाइन है, देन दिस लाइन विल बी द एक्सिस ऑफ द कर्व, ओके। इस लाइन को एक्सिस ऑफ द कर्व बोला जाएगा। फॉर द वर्टेक्स अ पॉइंट एट विच दिस कोनिक विल कट द एक्सिस, वो पॉइंट जहां पे कोई भी कर्व जो है वो एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। सबको समझ में आ रहा है? किसी को अगर डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं। और एक्सिस की फिर से बोलिए ना। ओके, फॉर द एक्सिस, राइट, सो द लाइन परपेंडिकुलर द डायरेक्ट्रीज, ऐसी कोई लाइन है जो डायरेक्ट्रीज के परपेंडिकुलर है एंड कट करती हुई फोकस को कट करती हुई जाती है। कोई भी कर्व है उसके फोकस को अगर कट करती हुई वो अगर लाइन जा रही है, देन द लाइन विल बी कॉल्ड एज अ एक्सिस। लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, a line passing through the focus of the conical curve, ये conical curve है, right, and perpendicular to the directrix of the conic, then it is called as a axis of that conical curve। हेलो सर, हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी। આપણે આમાં જે એલિપ્સ માટે જે ફોકસ એ જ ફોકસ પેરાબોલા હાइपरबोला માટે સેમ જ હશે ને? नहीं नहीं, देखो यहाँ पे मैंने एक ही फोकस लिया है, अगर पहला बोला शिफ्ट हो रहा है तो उसका फोकस भी शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक ही फोकस को सेंटर रख के सारे कर्व्स बनाए हैं। ये सारे कर्व्स मैंने अभी तो ऐसे ही बना दिए थे, बट जब इसको हम इक्वेशन के साथ बनाते तब फोकस को पहले बनाते, देन फोकस के बाद ये सारे कर्व्स बनते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई हाइपरबोला है इस तरीके से, देन यहाँ पे कहीं पे उसका फोकस होगा और ये इसकी एक्सिस होगी और ये इसकी डायरेक्ट्रीज होगी, राइट। इफ आई टेकिंग अनदर शेप, दिस विल बी द पैराबोला, देन यहाँ पे उसका एक फोकस रहेगा, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस रहेगी, वर्टिकल लाइन जो है वो डायरेक्ट्रीज रहेगी।
एंड यहाँ पे जो कौन कट कर रहा है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसको भी वर्टेक्स बोलते हैं। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ही फोकस को लेके सारे कर्व्स बनाए। अगर ये इलिप्स थोड़ा शिफ्ट हो जाता है देन इलिप्स का फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, राइट। सो आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक ही फोकस लिया है, बट अगर देखा जाए तो ये कैसे वर्टेक्स 3 मिले हैं हमें यहाँ पे, उस तरीके से 3 फोकस भी मिल सकते हैं। ओके सर। यस, ओके। नाउ इसमें कुछ डाउट नहीं है ना किसी को, सबने लिख लिया? ओके। सो अब इंजीनियरिंग कर्व्स की आगे जो मेथड्स है हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था, वो मेथड्स ड्रॉ करने से पहले मुझे एक आपको यूनिवर्सल मेथड सिखानी है टू ड्रॉ अ रेगुलर पॉलीगॉन, राइट। अगर कोई पॉलीगॉन बनाना है आपको, एक साइड लेंथ आपको अगर कोई दे देता है और उस साइड लेंथ की हेल्प से अगर आपको कोई पॉलीगॉन ड्रॉ करना होता है तो आपको किस तरीके से उस पॉलीगॉन को ड्रॉ करेंगे वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। आई हैव इनफ टाइम राइट फॉर दैट। 9:45 ओके। आपका लेक्चर कब खत्म होता है? 10 10 o'clock. a.m. 10 AM ओके। 15 मिनट्स ओके। आई जस्ट, मैं थोड़ी जल्दी कंप्लीट करने की ट्राई करूंगा, सो प्लीज कोप विथ मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख देता हूँ हाउ टू ड्रॉ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ गिवन साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सेट द फोकस। Regular polygon of given sides, right? So if they said okay, focus, जस्ट वेट, ये फोकस अच्छे से आ नहीं रहा है फोन का। कुछ तो प्रॉब्लम है। आई होप आप सबको विजिबल है, राइट? Yes, sir. Okay. So first of all, I am trying. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ। अगर मुझे कोई बोल रहा है कि आई हैव, मुझे गिवन पॉइंट दे रहे हैं, गिवन साइड लेंथ, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ P एंड Q इज इक्वल टू 50 mm। गिवन है कि भाई 50 mm की साइड लेंथ वाला पॉलीगॉन ड्रॉ कीजिए। अब पॉलीगॉन मीन्स कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल, स्क्वायर, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, right? Then let's just start to draw. I am taking one line of 50 mm first of all, right? And giving them point as P and Q. Focus.
नाउ ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ली है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा टू ड्रॉ a polygon of given fixed length. First of all, draw a line PQ of the length equal to side of the polygon. Side length मुझे given है 50 mm, so मैंने 50 mm की एक PQ लाइन जो है वो ड्रॉ की है, राइट. देन draw a perpendicular bisector RS of the line PQ and extend it up to T, right? So first of all, let's just draw a perpendicular bisector of line P and Q. So draw for perpendicular bisector I have, मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि किस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. टेक अ कंपास, टेक अ random distance and draw one arc at top side and one arc at bottom side, right? So मैंने यहाँ पे both arc जो है वो ले लिया है, and now I am drawing the perpendicular bisector of this line P and Q, right? उसको नाम देता हूँ S and R, राइट. एंड उसको क्या करना है, T पॉइंट तक एक्सटेंड करना है. मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ इस लाइन को, यहाँ पे एक नाम देता हूँ पॉइंट T, right? What will be it? Draw a perpendicular bisector RS of the line PQ and extend it up to the point T, right? Now अब हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, QP के परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है जिसको हमें देना है नेम QO. एंड ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो एग्जैक्टली PQ के डिस्टेंस के बराबर ही होनी चाहिए, राइट. सो PQ पॉइंट का डिस्टेंस जो मेजर करके सेम यहाँ पे एक आर्क बना रहा हूँ, देन उसको हमें एग्जैक्टली उसके जैसा ही बनाना है. एंड इसको नाम देना है O, right? Now what will we have to do, that make join these 2 points O and P with the arc taking point Q as a center. Q को सेंटर रखते हुए एक आर्क बनानी है P and Q को ज्वाइन करते हुए. Take a Q as a center and radius equal to PQ and draw arc to join point O and point Q. Now also join these 2 points with the straight line. Also join these 2 points with the straight line. यहां तक समझ में आया सबको? अब देखो मैं नंबरिंग दे रहा हूं, यहाँ पे बहुत केयरफुली ध्यान रखना नंबरिंग का. मैं क्या नंबरिंग दे रहा हूं, ये जो पॉइंट है कर्व का पॉइंट, जो PQ पॉइंट को कर्व से ज्वाइन कर रहा है और
वर्टिकल बाइसेक्टर को कट कर रहा है उस पॉइंट को हम नंबर 6 देंगे, नंबर 6। एंड जो स्ट्रेट लाइन जो है PO को कट कर रही है उसको नंबर देंगे नंबर 4। क्यों नंबर 4 एंड नंबर 6 दिया है वो आपको बाद में समझ में आएगा, मैं अभी आपको ड्रॉ जैसे ही आगे करते जाएंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज नंबर 4 एंड नंबर 6, ये जो वर्टिकल लाइन है उसको एग्जैक्टली उस लाइन का हॉरिजॉन्टल बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल बाइसेक्टर ऑफ पॉइंट 4 to पॉइंट 6 डिस्टेंस, राइट। तो एक मैं रैंडम डिस्टेंस ले रहा हूँ एंड पॉइंट 4 को सेंटर रख के एक आर्क बना रहा हूँ एंड सेम डिस्टेंस पे एक यहाँ पे आर्क बना रहा हूँ। देन repeat the same with the point 6, make one left side arc and one right side arc। so आपको 2 पॉइंट मिलेंगे एंड बोथ पॉइंट जो है वो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे। like this। and give the numbering। ये जो कट हुआ है यहाँ पे थर्ड पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे उसको मैं बोल रहा हूँ नंबर 5, राइट। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक कंपास, measure the distance of point 5 and point 6 on the compass। point 5 and point 6 का डिस्टेंस जो है वो मेजर कीजिए एंड देन point 6 को सेंटर रख के एक आर्क बनाइए वर्टिकली and then repeat the same from that point once again and same repeat from point 4, right। so हमें 3 और पॉइंट मिल गए, 1 in the downside and 2 at the top of 6 point, right। so डाउन पॉइंट है उसको मैं नंबर 3 दे रहा हूँ एंड अपवर्ड पॉइंट्स विल बी द 7 and 8। अब इनको इस तरीके से मैंने नंबरिंग क्यों दिया है वो अब आपको समझ में आएगा। इफ I want to draw a triangular shape of this 50 mm side length, अगर अब मुझे ड्रॉ करना है ट्रायंगुलर शेप तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट 3 को सेंटर रख के पॉइंट 3 को सेंटर रख के मैं एक सर्कल बनाऊंगा। सर हाँ सर थोड़ा स्लो करिए ना प्लीज। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आपको साथ में ड्रॉ करने का टाइम दूंगा। इफ आई वॉन्ट टू मेक ट्रायंगुलर में कितने वो होगा डायमेंशन, एजिस कितनी होगी, 3 एजिस, राइट। तो 3 नंबर का जो पॉइंट है उसको सेंटर रख के इस तरीके से सर्कल बनाना है कि वो सर्कल पॉइंट Q एंड पॉइंट P में से पास होना चाहिए, राइट। इस तरीके से पॉइंट Q एंड पॉइंट P में से वो पास होता हुआ सर्कल बनेगा। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है सर्कल क्योंकि ये स्केच पेन की वजह से सेंटर पॉइंट एग्जैक्टली मिल नहीं रहे हैं। अगर पेंसिल्स का यूज करेंगे सारे लाइंस में देन यू विल गेट द परफेक्ट पॉइंट कटिंग सर्कल्स, राइट। नाउ अगर देखा जाए तो 4F4
अगर मैं बात करूं ट्रायंगुलर, तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट P एंड पॉइंट Q, वो आपके दो पॉइंट है, एंड आपको ये सर्कल जहां पे कट हुआ है जिस पॉइंट पे, उस सर्कल को आपको एग्जैक्टली इस तरीके से मैच कर देना है। सर्कल जहां पे कट हुआ है TR लाइन को, उसको अगर मैच कर देंगे तो आपको मिलेगा ट्रायंगुलर शेप। मिल रहा है, राइट। इफ आई वांट टू ड्रॉ अ स्क्वायर, तो स्क्वायर में कितनी एजेस होती है, 4 एजेस। तो फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है उसको सेंटर रखिए, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड पॉइंट Q। Draw a circle that passing through the point P and point Q। फोर्थ नंबर की लाइन को, पॉइंट को आपको सेंटर रखना है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में कितने होते हैं पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स होते हैं, राइट। अब देखो यहाँ ट्रायंगल में तो क्या किया हमने, डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन कर दिया लाइन पे, बट स्क्वायर में क्या करेंगे, स्क्वायर में आपको पॉइंट जो ये अपनी लाइन है P एंड Q लाइन, उसको मेजर करना है 50 mm। मेजर करो और सर्कल पे आर्क बनाओ, तो एक आर्क यहाँ पे आएगी, एंड अगर वहां से आगे बढ़ता हूँ देन दूसरी आर्क यहाँ पे मिलेगी मुझे। यहाँ पे पॉइंट O को से रखे सेंटर। सो इफ आई जॉइन दिस लाइंस, ये जो मुझे पॉइंट मिले हैं 1 2 3 4, अगर मैं उसको ज्वाइन करता हूँ then I will get the square। अब इसमें आप देख सकते हो ये सारी जो साइड लेंस रहेगी स्क्वायर की, वो हमेशा 50 mm ही रहेगी। ट्राइंगल की भी 50 mm होगी और स्क्वायर की भी 50 mm ही होगी, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, इफ आई वांट टू ड्रॉ पेंटागन, सो पेंटागन में क्या होता है, पेंटागन में 5 साइड्स होती है, राइट। सो नंबर 5 पॉइंट जो है उसको मैं सेंटर रखूंगा, 5 नंबर पॉइंट को सेंटर रख के पॉइंट P एंड पॉइंट Q में से पास होता हुआ एक सर्कल बनाऊंगा। लाइक दिस, पॉइंट 5 को सेंटर रख के मैंने एक सर्कल बनाया है जो पॉइंट Q एंड पॉइंट P में से पास हो रहा है। अब क्या करना है मुझे, पॉइंट P एंड पॉइंट Q को वापस से मेजर करना है, पॉइंट P एंड पॉइंट Q को मेजर करना है, एंड देन वो जो हमारा लास्ट सर्कल है उसके ऊपर आर्क बनाना है, राइट। फर्स्ट वन आर्क विल बी लाइक दिस, अब ये जो आर्क बनी है उससे आगे बढ़ना है, सेम उसको सेंटर रख के मैं वापस आगे जाऊंगा तो मुझे क्या रहेगा, यहाँ पे वो सेम मैच करेगी आर्क T लाइन से, और अगर वहां से आगे बढ़ता हूं देन वापस वो आर्क मुझे यहाँ पे लेके आएगी। इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो मुझे 5 डिफरेंट पॉइंट मिल गए वापस। अब मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे पेंटागन मिलेगा, राइट। तो जॉइन P, फ्रॉम P से ये पॉइंट, वहां से वापस ये पॉइंट,
एंड ये पॉइंट। तो देखो आपको ग्रीन वाला जो है वो है ट्रायंगल, the red one is the square, सॉरी रेड से लिखता हूँ, pink one will be the pentagon. Now if I want to make hexagon, तो हेक्सागोन में कितनी साइड्स रहती है? 6 साइड्स, राइट? तो 6 नंबर वाला जो पॉइंट है हमारी वर्टिकल लाइन में, उसको सेंटर रख के एक आपको सर्कल बनाना है जो P एंड Q पॉइंट में से पास हो रहा हो। ये हमेशा याद रखना है, सारे सर्कल्स जो है वो हमेशा पॉइंट P एंड पॉइंट Q में से पास होंगे। Right? Then we will get our हेक्सागोन। बट हेक्सागोन को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? P पॉइंट एंड Q पॉइंट को जो लाइन है उसको मेजर करके सेम डिस्टेंस वाले में यहाँ पे, यहाँ से इस तरीके से, देन यहाँ ये जो लेटेस्ट पॉइंट्स मिलते जाते हैं उससे आगे आगे जाना है आपको। मैं उसको यहाँ से मैच करवा रहा हूँ अभी। सो ये जो 6 पॉइंट्स मिले हैं आपको वापिस से, उसको अगर हम मैच करते हैं एक दूसरे के साथ, देन वी विल गेट आवर हेक्सागोन। This will be our hexagon. अब अगर उसके साथ आगे अगर आपको हेप्टागोन एंड ऑक्टागोन भी बनाना है, देन मेक सर्कल फ्रॉम द 7th and 8th point, then you can get heptagon and octagon, right? So we are stopping our lecture at this point. We will continue for heptagon and octagon in our next lecture, that will be the after Diwali vacation. Thank you very much for this session.